اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے ریاست بہار کی۔ جی ہاں، بہار میں نئی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ سمراٹ چودھری وزیر اعلیٰ بنے ہیں اور نتیش جی کمار جو آج تک بہار کے وزیر اعلیٰ تھے، انہیں یوں سمجھیے کہ بڑی پیار سے، محبت سے کہے یا دبنگئی سے کہے یا دھمکی سے کہے، جیسی بھی کہے، آخر نتیش کمار نے وزارت اعلیٰ کا پد چھوڑ دیا۔ وجے چودھری اور وجیندر یادو نائب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں۔ قلمدانوں کی بھی تقسیم ہو گئی ہے، یعنی منتری پد کی بھی تقسیم ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے وزارت داخلہ سمیت 29 قلمدان اپنے پاس رکھے ہیں۔ گزشتہ کل پٹنہ کے لوک بھون میں منعقد حلف برداری کی تقریب میں انہوں نے وزیر اعلیٰ کے طور پر سمراٹ چودھری نے حلف اٹھایا۔ یہ بہار کی تاریخ میں پہلی بار ہے جب بی جے پی کی جانب سے کوئی لیڈر وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھال رہا ہے۔ یعنی اب تک بہار نفرتوں سے پاک تھا، مگر اب نفرتوں کے پھیلنے کا ٹھپا اور مہر لگ چکی ہے۔ اب بہار کی خدا ہی حفاظت کرے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، حزب اختلاف یعنی اپوزیشن پارٹی خواتین ریزرویشن بل، مہیلا آرکشن بل کے سمرتھن میں ہیں، حق میں ہیں۔ یعنی اپوزیشن پارٹی یعنی کانگریس اور تمام اپوزیشن پارٹیاں مہیلا آرکشن بل کے سمرتھن میں ہیں، لیکن حد بندی ترمیم کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ انڈیا محاذ کی میٹنگ میں یہ اعلان ہو چکا ہے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے بدھ کے روز کہا کہ اپوزیشن پارٹیوں نے حد بندی پر مجوزہ آئینی ترمیمی بل کے خلاف ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں کے سرکردہ لیڈروں نے بدھ کو نئی دہلی میں کھڑگے کی رہائش گاہ پر ملاقات کی تاکہ خواتین کے تحفظات کے قانون اور پارلیمنٹ کے 3 روزہ خصوصی اجلاس سے پہلے حد بندی میں ترمیم کے بارے میں حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ کھڑگے نے زور دے کر کہا کہ اپوزیشن نے ہمیشہ پارلیمنٹ میں خواتین کے ریزرویشن کی حمایت کی ہے، لیکن اس بل کو جس طریقے سے لایا جا رہا ہے اس پر وہ فکر مند ہے۔ آئیے ناظرین، ریاست گجرات سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گجرات سے خبر آ رہی ہے۔ یہ وہی گجرات جس کا وکاس دکھا کر 2014 میں پورے ملک کو بیوقوف بنایا گیا تھا۔ دیکھیں گجرات کا کیا حال ہے کہ گجرات میں منریگا اجرت بحران شدید ہو گیا۔ مزدور 6 ماہ سے تنخواہوں سے 6 مہینوں سے مزدوروں کو تنخواہیں نہیں ملی۔ ریاست گیر پیمانے پر مزدوروں نے احتجاج کی، آندولن کی دھمکی دی ہے۔ گجرات میں منریگا کے تحت اجرتوں کی ادائیگی میں بڑھتا ہوا بحران مزدوروں کو 5 سے 6 ماہ تک تنخواہوں سے محروم رکھے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے دیہی علاقوں میں مالی مشکلات بڑھ گئی ہے اور مزدور یونینوں نے فوری ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں ریاست گیر پیمانے پر احتجاج کی دھمکی دی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، لکھنؤ میں زبردست آگ لگی، تقریباً 200 جھونپڑیاں جل کر خاک ہو گئی۔ راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔ لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ آگ لگنے کی وجہ کا معاملہ سامنے جو آ رہا ہے وہ ابھی تک کھل کر نہیں آیا ہے۔ آگ لگنے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق رات 2 بجے کے قریب ایک
झोपड़ी में लगी आग ने तेजी से बड़े पैमाने पर आग की शक्ल इख्तियार कर ली। मौसमी गर्मा के आगाज के साथ ही उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में आग लगने के वाकयात में इजाफा शुरू हो गया है। तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से फैल गई, जिसने तकरीबन 200 कच्ची झोपड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि झोपड़ियों में गैस सिलेंडर और फ्रिज कंप्रेसर जोरदार धमाकों से फटने लगे। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका लरज उठा और लोग खौफ हरास के आलम में घरों से बाहर निकल आए। नाज़रीन, एक अहम दरखास्त, एक अहम अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आपको अल्लाह करीम ने इस साल हज या उम्रे की सआदत बख्शी है, या इस साल आप हज को या उम्रे को जाने वाले हैं, तो मैं आपको एक बेहतरीन किताब बताना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त है मुफ्ती आसिफ साहब, मौलाना आसिफ साहब रांदेर में रहते हैं, सूरत गुजरात में रहते हैं, और वो एक बड़े इदारे में वहाँ पर उस्ताद भी हैं। उन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी है, लेकिन एक किताब मेरी नज़रों के सामने आई हिंदी में, आसान सफर हज व उम्रा। उर्दू में भी उनकी ये किताब है, गुजराती में भी उनकी ये किताब है, मगर लोगों के इसरार पर और डिमांड पर उन्होंने इसको हिंदी में भी तहरीर किया है और इसका हिंदी वर्जन भी सामने आ गया है। मैं आपसे कहूँगा कि देखें, आप 7-8 लाख रुपये हज जैसी इबादत पर खर्च करते हैं। अगर आप सीख कर हज करेंगे तो फिर हज करने में मज़ा आएगा, तवाफ़ करने में, सफ़ा मरवा की सई में, फिर वो जो दुआएं आप पढ़ेंगे उसमें मज़ा आएगा। और दुनिया का कोई भी काम अगर बग़ैर सीखे किया जाए तो जाहिर बात है कि या तो वो फेल हो जाता है या अधूरा रहता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हज ज़िंदगी में आदमी एक बार करता है, और मुफ्ती आसिफ साहब ने इतने आसान अंदाज में सफ़र हज और उम्रा को इस किताब में बयान किया है। मैंने सैकड़ों किताबें उम्रा और हज की देखी है, लेकिन जो ये किताब पर मेरी नज़र पड़ी, बहुत ही आसान अंदाज में हजरत ने तहरीर किया है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप अगर किसी हाजी को मिलने भी जा रहे हैं तो आप उसे दूसरी चीज़ तोहफा न देते हुए इस किताब को आप तोहफे में दें, क्योंकि हाजी पढ़ेगा उसका हज सही होगा, उम्रा करने वाला पढ़ेगा उसका उम्रा सही होगा, वो भी इबादत सही अंदाज में कर पाएगा और आपको भी इसका सवाब मिलेगा। तो आप हज को जा रहे हैं या उम्रा को जाने वाले हैं तो भी आप इस किताब को खरीदें, या आप किसी हाजी को मिलने जा रहे हैं या किसी उम्रा करने वाले को मिलने जा रहे हैं तो आप ये किताब तोहफे में दें। ये उसके लिए सबसे बेहतरीन तोहफा रहेगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें और मुफ्ती साहब या उनके जो भी साथी है वो आपसे बात करेंगे। आप अपने घर पर भी इस किताब को ऑनलाइन मंगा सकते हैं। नाज़रीन, मगरिबी बंगाल के दुर्गापुर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, दुर्गापुर में बीजेपी ने आधी रात को थाने पर धावा बोल दिया। पुलिस के साथ झड़प हो गई। टीएमसी कारकुनों से तनाज़े के बाद कशीदगी का मामला सामने आया है। मगरिबी बंगाल में इंतखाबी सरगर्मियां, इलेक्शन का माहौल है और आखिरी मरहले में अब यह मामला पहुंच चुका है। वोटिंग की तैयारियां हो रही है। वहीं रियासत के दुर्गापुर में बीजेपी कारकुनों के जरिए आधी रात में थाने पर धावा बोलकर पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई की वजह से कशीदगी फैल गई है। मंगल की रात देर गए पुलिस स्टेशन के बाहर सूरत हाल उस वक्त खराब हो गई जब बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनों और हामियों ने थाने पर धावा बोल दिया। हंगामा इतना पुरतशद्दुद था कि कारकुनों ने जबरदस्ती गेट को धक्का देकर थाने के अंदर घुसने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ी। एक्चुअल में बंगाल में इलेक्शन है और बीजेपी हर वो काम करेगी जिससे ध्रुवीकरण हो सकता है और जिससे माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि माहौल खराब होता है तो बीजेपी को फायदा होता है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति होती है तो बीजेपी को फायदा होता है। नाज़रीन, रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे रिपोर्टर इरशाद शकील शेख ने बताया कि वंदे मातरम
गाने से, पढ़ने से इनकार करने वाले 2 मुस्लिम काउंसलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस की 2 खातून काउंसलरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि कौमी तराना वंदे मातरम नहीं गाने की वजह से इन दोनों के खिलाफ एमजी रोड थाना में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बजट इजलास के दौरान कांग्रेस की काउंसलर रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम ने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया था, जिसके बाद काफी हंगामा देखने को मिला था। अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई है। नाज़रीन, बिहार में नए वजीर आला सम्राट चौधरी बन गए हैं और बिहार की तारीख में पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर वजीर आला का ओहदा संभाल रहा है। लेकिन बिहार के प्रसिद्ध और हर दिल अजीज लीडर प्रशांत किशोर ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने ये जो नया बिहार का वजीर आला बनाया है, ये बनाया नहीं है, बिहार पर मुसल्लत किया है। और उन्होंने कहा कि हुकूमत साजी गैर जमहूरी तरीके से की गई है, यानी हुकूमत जो बीजेपी ने बनाया है बिल्कुल संविधान के खिलाफ गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत बनाई गई है और ये वजीर आला बना नहीं है, बल्कि बीजेपी ने इसको बिहार पर मुसल्लत किया है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के थाने से एक और अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हां, एक और साधु गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार लाइन लग गई है, पंडितों की, साधुओं की लाइन लग गई है। अशोक खरात ने तो एपिस्टिल फाइल को भी शायद फेल कर दिया, लेकिन कमाल की बात है कि अशोक खरात ने इतनी हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, मगर कोई भी हिंदू संगठन का खून नहीं खौला। जी हां, अब ये थाने से एक और साधु गिरफ्तार कर लिया गया है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म यानी खवातीन के जिनसी इस्तेसाल का इंकशाफ सामने आया है। 25 साला मुतासरा खातून की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। यानी लगातार साधुओं के केसेस सामने आ रहे हैं। महिलाओं से, बेटियों से दुष्कर्म, उनके साथ रेप, जोर जबरदस्ती या बेवकूफ बनाकर उन्हें ठगना, लूटना, उनकी इज्जत से खेलना, ऐसे ढेर सारे वाकयात मुल्क भर में सामने आ रहे हैं। आइए नाज़रीन, बीएमसी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस की एक बड़ी अफसोसनाक खबर कहेंगे इसे, जो सामने आ रही है और हंसी भी आ रही है। जी हाँ, बीएमसी सदर दफ्तर में यानी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस में खातून कॉर्पोरेटर के पर्स से 20,000 रुपए चोरी हो गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब बीएमसी का सदर दफ्तर ही महफूज नहीं तो फिर आम शहरियों का क्या हाल होगा। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीएमसी सदर दफ्तर में या बीएमसी में अब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ चुकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी, लूट मार, चोरी चपाटी, डकैती, गुंडागर्दी, ये सारी चीजें आम होगी। लेकिन अब लोगों में बेचैनी हो गई है कि जब बीएमसी में, सदर दफ्तर में कारपोरेटर के पर्स महफूज नहीं हैं और वो महफूज नहीं हैं तो फिर आम शहरियों का मुंबई में क्या हाल होगा। वैसे भी चोरों की बिल्कुल निकल पड़ी है। चोरों को पकड़ने में भी हमारी पुलिस कहीं ना कहीं यूं समझिए कि बड़े पैमाने पर नाकाम होती हुई नजर आ रही है। खुद मैं मेरी बात करूं कि आज 3 साल हो गए हैं मेरे घर में चोरी को, आज तक जलगांव की पुलिस किसी भी चोर को पकड़ नहीं पाई। रात दिन चोरियां हो रही है, गोलियां चल रही है, बंदूकें निकल रही है, मर्डर हो रहे हैं, चाकुओं के वार हो रहे हैं। पुलिस पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। नाज़रीन, वादी कश्मीर श्रीनगर से हमारे रिपोर्टर मौलाना हबीबुर रहमान ने एक खबर भेजी है कि श्रीनगर में एक तकरीब में, एक प्रोग्राम में तनाज़ा हो गया, लेकिन उस तनाज़े में भी उमर अब्दुल्ला जो वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री वजीर आला है, उनकी सराहना की जा रही है, उनकी तारीफ हो रही है। क्योंकि एक प्रोग्राम में वजीर आला उमर अब्दुल्ला पहुंचे, वहाँ पर एक ओपनिंग, एक इफ्तिताह उन्हें करना था, लेकिन इफ्तिताह के लिए जो रिबन लगाया जाता है, जिसे काटा जाता है, वो रिबन में तिरंगा बना हुआ था, जिसे काटने से, उस रिबन को काटने से उमर अब्दुल्ला ने इनकार कर दिया। तो इसको लेकर उमर अब्दुल्ला की तारीफ भी हो रही है, वतन से और तिरंगे से मोहब्बत
मोहब्बत की बात को सराहा भी जा रहा है, और वहीं पर लोग सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि मुल्क में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 52 साल तक 50-52 साल तक के अपने हेडक्वार्टर पर, अपने हेड ऑफिस पर तिरंगा नहीं लहराया, जिन्होंने हमेशा तिरंगा का अपमान किया है। और एक मुसलमान मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, जो तिरंगा बनी रिबन को काटने से भी इनकार कर रहा है। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे, कालेपन से है परेशान तो पाए साफ, मुलायम, चमकदार, खूबसूरत स्किन, नेचुरल ग्लो, कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर। हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।